آج اسکردو کے نوجوان کا جذبہ دیکھ کر، اسکردو کے عوام کا جوش دیکھ کر مجھے تو یقین ہو چکا ہے کہ جیت صرف اور صرف کی ہوگی، بی بی شہید کی ہوگی، ذوالفقار علی بھٹو کی ہوگی۔ ساتھیوں یہ آپو علی کا علاقہ ہے، یہ چیئرمین اکبر کا بھی علاقہ ہے، اور یہ صوبیدار آخر محروم کا بھی علاقہ ہے۔ ہمیں سارے جیالوں کو انہوں نے اپنی پوری زندگی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور پہ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ آگے لے کے اسی اسکردو میں باقی پارٹی کا جو جہد کرتے رہے، ہم ان کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ ساتھیوں، اب پاکستان پیپلز پارٹی کی نئی نسل کی جدوجہد شروع ہو چکی ہے، اور ہم نے وہ حقوق جو پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی ملک میں باقی صوبوں کو دلوائے ہیں، اب ہم نے وہ حقوق گلگت بلتستان کے عوام کو دلوانا ہے۔ یہ ہمارا آج کی کوشش نہیں ہے، یہ تو ایک مسلسل ایک جدوجہد رہا ہے۔ پہلے قدم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایف سی آر کا نظام کا خاتمہ کیا، راجنیتی نظام کا خاتمہ کیا، اور گلگت بلتستان کے عوام کو آزاد کروایا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں کے عوام کو حقوق دیے، یہاں کے عوام کو کاؤنسل دیا، یہاں کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، اور پھر صدر زرداری کو جب موقع ملا، صدر زرداری گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا، گلگت بلتستان کا نام دلوایا، گلگت بلتستان کا اسمبلی دلوایا، گلگت بلتستان کو گورنر دیا، اور ہاں، گلگت بلتستان کا پہلا وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب کو آپ کو منتخب بھی کروایا تھا۔ میں مہدی شاہ صاحب کو، سابق وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب کو بابا روزگار کہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں کیوں مہدی شاہ صاحب کو، جو بھٹو شہید کا جیالہ بھی رہا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ساتھی بھی رہا، میں اس کو کیوں بابا روزگار کہتا ہوں؟ وہ اس لیے کہ اپنے دور میں اس صوبے کے 25,000 نوجوانوں کو روزگار دلوایا تھا۔ مگر یہ ظلم کو زیادتی دیکھو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کے بعد لوگوں کو روزگار سے نکالے گی۔ جو لوگ ان کو روزگار ملا ان کو ریگولرائز نہیں کیا گیا۔ یہ کام تو ہم پورے ملک میں کرتے ہیں۔ ہمیں 2008 میں حکومت میں موقع ملا تو جن لوگوں کو مشرف کے دور میں اور دوسرے کے دور میں بے روزگار کروایا گیا، ہم نے ان کو واپس روزگار دلوایا تھا۔ وہ پہ روزگار دلوا رہے تھے، ہم نے ان سب کو ریگولرائز کروا دیا گیا۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیتے ہیں تو اب یہ بھٹو شہید کا نواسہ کا وعدہ ہے، یہ بی بی شہید کا بیٹا کا وعدہ ہے کہ میرا سب سے پہلا کام، سب سے پہلے ترجیح یہ ہوگی کہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ہم نے روزگار دلوانا ہے۔ یہاں آپ کا کینڈیڈیٹ محمد علی شاہ صاحب ہے،
आपने मोहम्मद अली शाह साहब के साथ देना है। आपने नवंबर 15 को एक अवामी नुमाइंदा को, शहीदों के जमात का नुमाइंदा को, तीर के नुमाइंदा को मुंतखब करवा के मुझे ऐसा एक नुमाइंदा देना है जो स्कर्दू टू के अवाम के मसाइल हल कर सके, आपका मुश्किल वक्त में, आपका दुख में आपके साथ दे सके। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाते हो तो इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान को उस तबाही से बचा सकते हैं जो पूरे पाकिस्तान में तब्दीली के नाम से शुरू हुआ है। यहां तो पीटीआई वालों तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है, इन्होंने तो कैंडिडेट ही नहीं दिया है। इसलिए उनको पता है कि मेरे गिलगित और बल्तिस्तान के अवाम, मेरे इस कद्दू के अवाम बाशूर लोग हैं। वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, उनको पता है। अगर आपने बाकी सूबों को बेवकूफ बनाए हैं, इसका ये नहीं मतलब कि आपके झूठ में, आपके धोखे में, आपके यू टर्न में ये लोग आ सकते हैं। इनको तो पता है कि आपके पूरे इस्लामाबाद में हर तबका का, हर जगह से लोग एहतजाज कर रहे हैं आपकी नाकामी की वजह से। लेडी हेल्थ वर्कर्स तक एहतजाज कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, बुजुर्ग पेंशनर्स एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए तब्दीली के नाम पे तबाही हो चुका है। तो फिर इसलिए कि पीटीआई तो खुद मुंह दिखाने के तो काबिल ही नहीं है। कठपुतलियों ने सिलेक्टेड ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे, कैंडिडेट नहीं दे सके, तो कठपुतली जमात डाल दिया। कठपुतलियों किसी और कठपुतली को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इस किस्म की जमात, इस किस्म का जमात पीटीआई जैसे जमात के साथ दे सकते हैं, सिलेक्टेड के साथ दे सकते हैं, जुल्म के साथ दे सकते हैं, उस जमात के साथ दे सकते हैं जिसने मेरे पाकिस्तान के नौजवानों को बेरोजगार किया है। कैसे दे सकते हैं उस जमात से जो मेरे पेंशनर्स के साथ जुल्म कर रहा है? तो कैसे साथ दे सकते हो उस जमात के साथ जो मजदूरों के साथ, किसानों के साथ जुल्म करते हैं? इनसे ये उम्मीद नहीं था। बड़ा अफसोस होता है। उनसे इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अजीब तेरी सियासत, अजीब है तेरे निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। साथियों, आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो आपका आवाज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में आपका और पूरी दुनिया में आपकी आवाज बुलंद कर सकता है। और वो एक ही नुमाइंदा है, वो मैं हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो आपके साथ वादे थे, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आपके लिए उम्मीद था, ख्वाब थे, मैंने वो पूरा करना है। आपने मुझे इस काम में मदद करना है, मेरे नुमाइंदों को हर जगह से मुंतखब करवाना है। तो स्कर्दू 2 में मोहम्मद अली शाह को जितवाना है, हर इलाका से तीर को जितवाना है, इस्लामाबाद को पैगाम भेजना है, इस्लामाबाद को पैगाम भेजना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भुट्टो के साथ है, बीबी के साथ है, शहीदों के जमात के साथ है, किसी कठपुतली के साथ नहीं देंगे, किसी सिलेक्टेड के साथ नहीं देंगे।
साथियों, आपको तो पता है कि भुट्टो शहीद का मंशूर क्या है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवावत हमारी मईशत है, ताकत का सर चश्मा अवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। अगर आप इस मंशूर को मानते हो, अगर आप इस मंशूर को अपनाते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नामुकम्मल मिशन को आपकी मदद से मुकम्मल करना चाहता हूं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से हमने जो इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें इजाफा करना चाहता हूं। जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मजदूरों को हुकूक दिया, मजदूरों को आवाज दिया, मजदूरों के साथ दिया, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने गरीब मजदूर की आवाज बनी, मैंने अपने मजदूरों का आवाज बनना है। और जैसे हम सिंध में बेनज़ीर मजदूर कार्ड शुरू कर रहे हैं, यहां के मजदूरों के लिए भी मैं मजदूर कार्ड लेकर आना चाहता हूं, उनको अपना हक दिलवाना चाहता हूं। साथियों, मैंने सिंध में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया है। मुफ्त दिल के इलाज के हॉस्पिटल्स जो महंगे तरीन सर्जरीज होते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट अटैक, स्टेंट्स, ये सारे महंगे तरीन इलाज के हॉस्पिटल्स होते हैं, मगर पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए सिंध में मुफ्त है, कराची में मुफ्त है, सखर में मुफ्त है, लड़कानों में मुफ्त है, गंबट में, खैरपुर में मुफ्त है। तो अगर वहाँ मुफ्त है तो स्कर्दू में मैं ऐसे ही NICVD के लिए, दिल के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल कायम करना चाहता हूँ। हमने ऐसे डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, आपने सुना होगा, सिंध का डॉक्टर अदीब रिजवी साहब के साथ मिलके हमने SIUT के मुफ्त इलाज के, किडनी के, लिवर के इलाज के लिए इदारे खड़े किए हैं कराची में, सखर में, और मैं चाहता हूं कि यहां बल्तिस्तान में, यहां स्कर्दू में इस किस्म के हॉस्पिटल से। ये काम तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, खिदमत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थर जैसा पाकिस्तान में मैं पावर प्लांट खड़ा कर सकता हूं, थर के कोयले से मैं बिजली बना सकता हूं, तो आपका बिजली का मंसूबा है, जो आपका बिजली घर का मंसूबा है जो बंद पड़ा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मंसूबा भी मुकम्मल करके दिखाएगी। आपका जो हक हाकमियत है हम भी वो देते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपके हक के मलकियत को तहफ़्फ़ुज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत ही दिलवाएगी। ये इलेक्शन हुकूमत का बनाने का, हुक्मरानी का, इक़्तिदार का इलेक्शन नहीं है, ये आपकी मुस्तक़बिल के सवाल है। और मैं इसलिए आपका फिक्रमंद हूं, आपके लिए अच्छा चाहता हूं। मैं ये चांस भी नहीं छोड़ रहा हूं कि किसी और जमात को मौका मिले। मैं गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाका में खुद जा रहा हूं, इसलिए मैं गिलगित बल्तिस्तान का इज्जत करता हूं, इतना इज्जत करता हूं जिसने मैं किसी और इलाका का आवाम का इज्जत करता हूं। जिस किसी और सूबा में इलेक्शन होता तो मैं हर डिवीजन में तो जरूर जाता, हर कैंडिडेट के पास तो जरूर जाता। तो यहाँ अब ना सिर्फ इलेक्शन का सवाल है, अब गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल का सवाल है, तो फिर जरूर मैं यहाँ मौजूद है। नवंबर 15 तक मैं आपके दरमियान में हूँ। मैं किसी को आपके वोट पे डाका नहीं डालने दूंगा, किसी को आपका वोट की चोरी नहीं करने दूंगा। इंशाअल्लाह ताला नवंबर 15 को हम जश्न मनाएंगे, आपकी जीत के जश्न मनाएंगे और साथ मनाएंगे। और सारे कुव्वतों को बताना चाह रहा हूं, सारे कुव्वतों को बताना चाह रहा हूं,
कि यहाँ के आवाम का जोश देखो, यहाँ के आवाम का जज्बा देखो। तुम कठपुतली जमातों को खड़े कर रहे हो, तुम कठपुतली जमातों को सपोर्ट कर रहे हो। मैं खबरदार करता हूं, आप यहाँ धांधली नहीं कर सकते, हम आपको इजाजत नहीं देते। आप मेरे गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के वोट का चोरी करने की कोशिश भी की तो मैं इनके साथ मिलके हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ में खुद बैठ के एहतजाज करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमने देखा कि धांधली का नतीजा में पाकिस्तान में क्या हुआ। ऐसे हम इजाजत नहीं देंगे कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल भी तबाह करें। ये मुमकिन ही नहीं है। आपने तीर के साथ देना है, मेरे साथ देना है, मेरे बाजू बनना है, मेरे आवाज बनना है, मेरे ताकत बनना है, घर घर जाना है, बुजुर्गों से, नौजवानों से, मर्द से, औरत से मुतालबा करना है कि बिलावल भुट्टो खुद आया था, खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपका अपना मुस्तकबिल को बचाने के लिए, तीर के साथ दे, बिलावल के साथ दे। आपका मेहरबानी। जिए भुट्टो।